Hello, my dear students. Welcome to another interesting class of our second chapter, that is periodic classification of elements. Yes? Okay. So, before moving to our today's interesting topics, let's revise what we have learned in our last class. Okay, I hope you remember what we have learned yesterday. Okay, so we have learned about modern periodic law. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? दैट इज एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक मास. ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको क्या ध्यान में रखना है? अबाउट एटॉमिक नंबर. ओके, यू डोंट हैव to remember anything about atomic mass, but you have to remember everything about atomic number. Okay, yes. Then the statement of the modern periodic law was stated as follows, that is, the properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. Okay, तो properties of elements जो है, तो properties of elements are based on what? Atomic numbers. Okay, yes. Then modern periodic table, that is long form of periodic table. Here in this we have learned so many concepts in detail in our last class. So in a modern periodic table the elements are arranged in accordance with their atomic number. Okay, तो modern periodic table में elements जो है वो कैसे arranged किए हैं? According to their atomic number. Okay, and then we have seen so many different examples and different concepts related to all these topics. Yes, so what we have learned, then we have learned another interesting topic, that is the structure of modern periodic table, which is very nice. Yes, and तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या ध्यान में रखने का? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? It consists of 18 vertical columns. Okay, vertical columns कैसे हैं? ये ऐसे straight line, this is 1 2 3 4 ऐसे straight line वाले. ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? 18 groups, vertical columns which means groups. ठीक है, and then the horizontal, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं ऐसे, मतलब अभी आप यहाँ पे देखोगे दैट इज के से लेके के आर तक. ओके, ऐसी जो लाइन है उनको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रोज एंड विच आर कॉल्ड एज पीरियड्स. ओके, सो हाउ मेनी पीरियड्स वी हैव ओवर हियर? दैट इज वेरी गुड, दैट इज 7 periods. ओके, तो vertical columns which means groups and horizontal rows which means periods. Okay, then here these two groups, they are called as what? They are the elements of S block. Okay, then from group 3 to group 12 the elements which are there, they are called as D block elements. Okay, yes. Then ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो भी एलिमेंट्स है उनको क्या बोलेंगे? सो दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, एंड देन हियर 57 to 71 they are called as lanthanide series, and 89 to 103 they are called as actinide series. So they both together are called as what? F block elements. Okay, so this is about the structure of modern periodic table. This we have learnt in our last class. So here one question arises, that is, ये जो आप periodic table देख रहे हैं इसमें you can see the different colors, right? So what these different colors indicates? Okay, तो यहाँ पे आप देख रहे हो this is yellow color, then यहाँ पे आप blue color, green color. So what is this color indicate? Okay, this type of question will not ask in the exam, but आपको ध्यान में रखना है, means this is for your knowledge. ठीक है, okay, so let's see why this different colors indicates. Okay, अब यहाँ पे आप ग्रुप 1 में देखोगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, इसको थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, लिथियम टू Fr. ठीक है, सो दिस पिंक कलर का जो बॉक्स है उसको क्या बोलेंगे? दे आर द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, राइट? सो दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. ओके,
आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो बाद में देखने वाले हैं तो वहाँ से हमको पता चलेगा दैट इज हियर these elements have one electron in their outermost shell. Okay, so these group 1 elements are called as what? Alkali metal. Why alkali metals? Okay, so when they react with water they form hydroxides and release hydrogen gas. Okay, so hydroxide, these hydroxide are known as what? Alkali. ठीक है, since all these metals form corresponding alkalis they are known as alkali metals. ठीक है, तो ध्यान में रखना है group 1 metals are called as alkali metals, so they are indicated as pink color. Okay, then group 2 elements, group 2 elements are called as, here you can see these group 2 elements are called as what? They are called as alkaline earth metals. Why they are called as alkaline earth metals? Because oxides of these metals are found in earth crust. Okay, that's why they are called as alkaline earth metal, and they have two valence electron in their outermost shell that we are going to see next. Okay, तो ये हो गया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात. ठीक है, हियर यू कैन सी द एलिमेंट्स आर शोन इन different colors according to the different properties of elements. Different colors are given to them. Okay, yes. So अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, okay, they are called as transition metals as they show transition in their properties. Okay, so they are called as what? They are called as transition metals. So they are indicated in the yellow color, which means इनकी property something kind of different है than the another elements. Okay, तो आप यहाँ पे देखोगे group 57 element number 57 to 71 and 89 to 103, इसमें क्या दिखाई देता है? ये जो एलिमेंट्स है ये किधर लिखे हैं? एफ ब्लॉक में लिखे हैं, बिकॉज एक एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट आता है. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है ये 14 एलिमेंट्स एक ही बॉक्स में लाना दैट इज़ सो मच डिफ़िकल्ट. तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे लिखे? इनके लिए सेपरेट बॉक्सेस दिया, दैट इज लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन मेटल्स. मैंने जैसे बोला दिस येलो कलर इंडिकेट्स व्हाट? ट्रांजिशन मेटल्स. बट ये जो एलिमेंट है जो बाहर की तरफ लिखे हैं ये भी इसके अंदर में इसके अंदर ही थे, दैट मीन्स they lie inside the transition metals. yes, but उनका जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. एक ही बॉक्स में 14 एलिमेंट्स एग्जीक्यूट करना दैट इज़ सो मच डिफरेंट. दैट्स वाई ये जो एलिमेंट्स है ये बाहर की तरफ लिखे हुए हैं, बट ये है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही, बट हम इनको क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दैट इज दिस एलिमेंट्स, that is F block elements, are called as inner transition metals since they lie inside the transition metals. ठीक है, तो उनके लिए भी एक सेपरेट कलर का इंडिकेशन दिया है. ठीक है, ओके. नाउ ये हो गया ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक. नाउ हियर यू कैन सी, अगर ये जो रह गया है यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला लास्ट टाइम, ये जो जिगजैग लाइन है उसके लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? थिंक एंड आंसर. यस, द लेफ्ट साइड एलिमेंट्स दे आर नोन एज मेटल्स. दे ऑल आर मेटल्स. एंड राइट साइड एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर के जो दिए हैं ये सब जो है ये भी मेटल में लाई करते हैं. दे आर ऑल्सो मेटल. एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, यू ऑल नो दैट. तो ये ग्रीन कलर जो है वो इंडिकेट करता है दैट दे आर ऑल्सो मेटल. ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे दैट इज़ ये जो जिगजैग लाइन है उसके फर्स्ट 13 ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, उनको क्या दिया है? उनको ब्लू कलर दिया है. फिर यहाँ भी ब्लू कलर है, फिर GE को भी ब्लू कलर है, यहाँ भी ब्लू कलर है. तो ये जो
ब्लू कलर के एलिमेंट है, इनको बोलेंगे मेटलॉइड्स. फॉर एग्जाम्पल बी, देन एस आई, देन जी ई, देन ए एस, एस बी, टी ई एंड ए टी, दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स. एंड इन सब को छोड़ के जो भी बचे हुए हैं इनको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स. ठीक है, तो इनको बोलेंगे नॉन मेटल्स. यहाँ पे आप देखोगे दिस इंडिकेट्स अ डिफरेंट कलर. सो एज आई हैव टोल्ड यू yesterday that they are the family of halogens. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are the family of halogens. So they are indicated as a different color. And this last group, that is 18 group, you all know that this is called as zero group, or they all are noble gases. So they are indicated with the different colors. ठीक है, आप यहाँ पे इस सीरीज को बोरॉन फैमिली भी बोल सकते हैं, ये सीरीज को आप कार्बन फैमिली भी बोल सकते हैं. यहाँ पे आप बोल सकते हैं दैट दिस इज अ नाइट्रोजन फैमिली, ये पूरा ग्रुप. ओके, ग्रुप नंबर 15 is called as nitrogen family. Then group number 16 is also called as what? Oxygen family. So like that. I hope now you all understand this concept very well, that why the different colors are there in the different elements. Okay, so this is because of their properties. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एंड ऑल. ओके, so yes, this is a big question. So now we are going to see our today's topics. Okay, that is modern periodic table and electronic configuration of elements. Okay, yeah, this is very interesting and it is very easy. You just have to pay attention over each and everything. Okay, then yes, first point says within a period the neighboring elements differ slightly in their properties while the distance element differ widely in their properties. Okay, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगर आप यहाँ पे इधर आप थर्ड पीरियड में आप देखोगे, ओके, एन ए है, एम जी है, ए एल, एस आई, पी, एस, सी एल एंड ए आर. These are elements which are there in the period number 3. ओके, तो ये पॉइंट ऐसे कहता है कि अगर हम Na एंड Mg को लेंगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी सेम हो जाएगी. ओके, बट अगर हम Na और यहाँ पे क्लोरीन को लेंगे, Na लेंगे एंड क्लोरीन लेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है, वाई? बिकॉज Na एंड Mg दिस आर द नेबरिंग एलिमेंट्स. ठीक है, ये दोनों एलिमेंट साइड साइड में हैं, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड एज नेबरिंग एलिमेंट्स. बट आप देखोगे Na एंड Cl ये थोड़े दूर के एलिमेंट्स हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, येस. देन द ग्रुप शोज सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज़. ओके, तो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो क्या दिखाएंगे? सिमिलैरिटी दिखाएंगे एंड थोड़े से चेंजेस भी आप देखोगे इन दैट प्रॉपर्टीज़. तो ये सेकेंड पॉइंट कहता है कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज़. कुछ जो है वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, कुछ जो है वो चेंजेस. बट आपको ध्यान में रखना है कि जब ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं वो similarity and gradation show करते हैं in their properties. Gradation which means some kind of little changes. Okay, yes. Then these characteristics of groups and periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the elements. तो ये जो similarity है and ये जो gradation है, some kind of changes in their properties, ये है, ये किसकी वजह से है? So this is because of what? Electronic configuration of elements. Okay, yes, clear till now? Okay, then we are going to see that is characteristics of groups and periods. Okay, so first point says the characteristics of the groups and periods in the periodic table are understood by comparison of the properties of elements. Yes, जब हम different elements के properties जो है वो compare करेंगे तब हम
तब हमें क्या होगा, then we will came to know about their characteristics. Okay, yes, then the various properties of all the elements in a group show similarity and gradation. That is what I said in our previous slide, that is when we'll go top to the bottom in a group, then what happens, the elements show similarity and gradation in their properties. Okay, yes, however the properties of elements change slowly while going from one end to the another, from left to right in a particular period. वही मैंने बोला कि आप जब ऐसे एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तब क्या होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंजेस स्लोली. ओके, तब उनके जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे एक पीरियड में. ओके, yes. Okay, now here we are going to see some basics of electronic configurations of elements. This is very easy, just remember few tricks. Okay, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम वी हैव टू टेक 4 शेल्स. ओके, 4 शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल. ओके, के शेल जो है यहाँ पर आप देखोगे ये पोटेशियम है. ऐसे इमेजिन करो दैट दिस इज अ न्यूक्लियस. ओके, ये जो न्यूक्लियस के साइड वाला जो शेल है उसको बोलेंगे के शेल. ठीक है, फिर उसके साइड वाला जो सेकेंड शेल है उसको बोलेंगे एल शेल. देन उसके साइड वाला जो है उसको बोलेंगे एम शेल एंड द आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहर होगा उनको क्या बोलेंगे, एन शेल. ठीक है, ओके. तो ये जो के शेल है उसमें हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं. इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है के शेल की, दैट इज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. फिर उसके बाद जो एल शेल है उसकी कैपेसिटी है दैट इज मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स इन द एल शेल वी कैन, हम लोग इन एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं. फिर उसके बाद जो एम शेल है उसमें लॉ ऑफ ऑक्टेट जो है वो अप्लाई होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट. बट उसमें भी हम 8 इलेक्ट्रॉन तक ही इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें भर सकते हैं. फिर जो एन शेल है उसमें रिमेनिंग जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हम भरेंगे. ओके, तो पहले ये जो है ये ध्यान में रखो कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एन शेल में जो रिमेनिंग होंगे वो आ जाएंगे. ठीक है, अभी हम लोग कुछ भी रैंडमली ऐसे कुछ भी ले लेते हैं. येस, सो हियर यू कैन सी लिथियम. लिथियम हैज़ एटॉमिक नंबर दैट इज 3. ओके, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3. ओके, तो जैसे कि मैंने बोला पहले जो न्यूक्लियस है जो एलिमेंट है उसके बाजू वाला जो ऑर्बिट है शेल है वो हमको भरना है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वेरी गुड, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन. तो हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, ऐसे इमेजिन करो. हाँ, एंड देन अनदर यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में हो गए. फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो हम किस में भरेंगे, एल शेल में. ठीक है, और फिर एम एंड एन शेल वो नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही शेल आ जाएंगे. यहाँ पर आप देखोगे इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो के शेल में ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसमें 1 ही शेल आ जाएगा. जितने यहाँ पे 1 शेल आएगा, यहाँ पे ये देखो 2 and 1, दैट मीन्स 2 शेल आएंगे. यहाँ पे देखो 2 8 1, दैट मीन्स 3 शेल आएंगे. पीरियड वाइज जाएंगे तो, एंड यहाँ पे जो है इन दिस 4th पीरियड कितने शेल्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 शेल्स. अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तब आपको दिखाई देगा दैट इज यहाँ पे 1 ही शेल है, फिर यहाँ पे 2 हो गए, फिर यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, के में 4 हो गए. येस, सो दिस इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ वेरी इजी.
नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस K, दैट इज पोटेशियम. ओके, आप यहाँ से भी समझ में आपको आ सकता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है. अगर हम काउंट करेंगे 8 + 2 10. ओके, 10 + 8 18 + 1 19. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे K का एटॉमिक नंबर कितना है, दैट इज 19. ओके, देन वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स. ये जो है K है, इसके साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, K शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे भर दिए. फिर उसके बाद में सेकेंड शेल में कौन से आएंगे, कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 2 एंड 2. ओके, 8 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे भर दिए. फिर उसके बाद कितने हो गए, 8 + 2 दैट इज 10. हम लोग को और 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं. तो उसके बाद वाला जो शेल है M शेल, उसमें कितने भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. ओके, यहाँ पे M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे. और फिर उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक. तो एक जो बचा है वो हम N शेल में भर देंगे. सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको पहले देखना है कि एटॉमिक नंबर क्या है. यस, उसके हिसाब से आपको 2 डालने हैं फर्स्ट शेल में, उसके बाद 8 डालने हैं सेकेंड शेल में. अगर जैसे उसका एटॉमिक नंबर है वैसे आपका शेल बढ़ते जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ आप यहाँ पे देखोगे 18 ग्रुप में, ओके, ग्रुप नंबर 18 में ये जो Ar है दैट इज अर्गॉन, उसका एटॉमिक नंबर है, आप यहाँ से देख सकते हो, दैट इज 8 + 8 16 + 2 18. तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18. तो अब हम कैसे भरेंगे, जैसे कि बोला है फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट इज 1 एंड 2. यस, देन सेकेंड शेल में कितने भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया यहाँ पे. यस, देन द थर्ड शेल में कितने आएंगे, 8. तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट शेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उसका जो एटॉमिक नंबर था वैसे हम लोगों ने उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भर दिए हैं, इसीलिए नेक्स्ट शेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं. तो इसके लिए अर्गॉन के लिए कितने शेल्स आएंगे, 3 शेल, दैट इज K, L एंड M. ओके, सो दिस इज विच इज़ वेरी इजी. आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एक शेल में डालने हैं. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो व्हाट इज दैट, लेट्स सी. Groups and electronic configuration. Okay, the number of valence electron in the elements of group 1, that is the family of alkali metals, is same. Okay, तो यहाँ पे मैंने बोला this family is called as what, family of alkali metals. Okay, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नोबल, वो नॉन मेटल में आता है. ठीक है, ओके, लेट्स सी ओवर हियर. यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि हाइड्रोजन को थोड़ा टाइम साइड में रखो. ठीक है, यस. सो ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाइड्रोजन में वैरायटी ऑफ, यस, यहाँ पे मैंने बोला था कि हाइड्रोजन जो है उसको थोड़ा टाइम साइड में रखो. अगर आप देखोगे यहाँ हाइड्रोजन का कलर कौन सा है, ब्लू कलर, और ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर. तो हाइड्रोजन और ये जो है ये मैंने क्या बोले, दे आर कॉल्ड एज, दे आर नॉन मेटल्स. ओके, सो हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज नॉन मेटल्स, इसलिए उसका जो कलर है वो भी ब्लू कलर से दिखाई देता है. हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल. ओके, हाइड्रोजन इट इज़ अ गैस. ठीक है, सो इट इज़ इंक्लूडेड इन नॉन मेटल. ओके, यस, दैट इज़ ऑल. सो वी हैव सीन दिस. यस, जल्दी जल्दी देखो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक. Characteristics of groups. Yes, then we have seen this electronic configuration. Okay, then
we are over here, that is the number of valence electron in the elements of group 1, that is the family of alkali metals, is the same. ओके तो ये जो है ये अल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच मीन्स व्हाट, द इलेक्ट्रॉन्स विच इज देयर इन द आउटरमोस्ट शेल. ओके आउटरमोस्ट शेल, सबसे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है. तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 ही है. ओके दैट मीन्स इट इज सेम फॉर ऑल द ग्रुप, फॉर द ग्रुप नंबर 1. जैसे आप यहाँ पे देखोगे ग्रुप नंबर 2 के आउटरमोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2. यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. तो ऐसे जैसे आप पीरियड में जाओगे वैसे इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एक जो ग्रुप है उस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा. ठीक है. yes. Similarly, if you look at the elements from the any another group, you will find the number of their valence electron to be same. जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आप लोगे, that is here if you can see that here the valence electrons are 4. इसके बाद भी 4 ही है. ठीक है. इसके बाद जो एलिमेंट है इसमें भी 4 ही रहेंगी, that is the outermost electron. ठीक है. Then for example the elements that is beryllium, magnesium and calcium belong to group 2, that is the family of alkaline earth metal. There are 2 electrons in their outermost shell. Okay, I have explained this, that is there are 2 electrons in their outermost shell. yes. Then there are 7 electrons in the outermost shell of the elements such as fluorine, chlorine from the group number 17. Okay, देखते हैं ग्रुप नंबर 17 में. yes, यहाँ पे कितने हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन. ओके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर भी 7 ही है, उसके बाद में भी 7 ही होंगे. ओके so this is a family of halogens. yes, you all know that. While going from top to bottom within any group, one electronic shell gets added at a time. yes, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक ही शेल था, यहाँ पे 2 शेल हो गए, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे 4 शेल. तो एक एक शेल जो है वो बढ़ता जाएगा. yes, so from this we can say that the electronic configuration of the outermost shell is characteristics of a particular group. yes, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो तुम्हारा ग्रुप रहेगा. ओके यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज 3. दैट मीन्स दिस यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू द ग्रुप 2. ओके. However, as we go down the group, the number of shells goes on increasing. Yes, I have told you this. That is, number of shell goes on increasing as we go from top to bottom. Okay. Periods and electronic configuration. Okay, so what is that? On going through the periods in modern periodic table, the number of valence electron is different. yes, यहाँ पे आप देखोगे जब आप पीरियड में जाओगे तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. बट जब आप ग्रुप में जाओगे तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे. ओके एंड द नंबर ऑफ शेल इज सेम. yes, बट यू कैन सी द नंबर ऑफ शेल इज सेम. यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. yes. Also, while going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electron also increases by 1 at a time. Okay, while going from left to right within the period, atomic number increases. yes, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया. yes, and valence electron also increases. मतलब यहाँ पे 2 valence electron थे, यहाँ पे 3 valence electron हो गए. yes, that means it goes on increases. The elements in the period, that is Li, Be, B, ये कौन सा पीरियड है, ये है सेकेंड पीरियड. ओके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है. have electrons in the 2 shells, that is K and L. yes, I have told you this, that they have electrons in the 2 shells, that is K and L. okay, then the elements in the third period, namely Na, Mg, ये जो थर्ड पीरियड है उनके इलेक्ट्रॉन कितने शेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 3 शेल में. ठीक है. yes, यहाँ पे
Al का, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 8 + 2 10 + 3 13। तो हम पहले में 2 डालेंगे, फिर 8 डालेंगे, फिर रिमेन दैट इज 3 डालेंगे। तो कितने शेल हो गए? 3 शेल। ठीक है। And the number of electrons in the first 3 periods is determined by the electron capacity of the shells and the law of octet. Law of octet says that the maximum electron capacity will be 8 electrons. Okay, तो इसके बाद जो है दैट इज, यहाँ पर आप देखोगे के शेल में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज 2n², n which means what, 1 2 3 4 k n इन द फर्स्ट दैट इज के शेल, अगर हम 1² करेंगे तो 2 हो गया। यस, दैट मीन्स के शेल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। एल शेल में यहाँ पे आप देखोगे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बट एम एंड एन शेल में क्या एक्सेप्शन है, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, so as per the electron holding capacity of the shell, 2 elements are present in the first period and 8 elements in the second period. Okay, यहाँ पे 2 element, यहाँ पे 4 element. Okay, the third period also contain only 8 elements due to the law of electron octet. यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी लिखा है, बट 18 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं? एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। लॉ ऑफ ऑक्टेट विच सेज दैट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी विल बी 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम 80 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एम शेल में। देन the chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electron in it and the number of valence shell. Okay, yes, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, दैट इज राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे है कार्बन, एंड कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर दैट इज 6। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2 and 4। कार्बन यहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाले हम लोगों ने, और सेकेंड शेल में कितने जाएंगे? 4, दैट इज 1 2 3 4। ओके, लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज Mg। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? थिंक अबाउट दैट। 2 + 2, 8, कितने बचे? 2 ना, तो येस 2, 8, 2। ओके, लेट्स सी, येस इट इज़ राइट। तो यहाँ पर हम Mg के फर्स्ट शेल में कितने भरेंगे? 2। उसके बाद कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। ओके, देन Ca20। तो Ca का एटॉमिक नंबर है 20, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? 2 8, थर्ड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ध्यान में रखो, 8 एंड रिमेनिंग 2। ओके, तो न्यूक्लियस दैट इज Ca के साइड वाले में हम लोगों ने 2 भरे, उसके बाद में 8 भर दिए, उसके बाद में 8 भर दिए, और फिर जो बचे दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एंड ज़्यादा बड़े बड़े जो एटम्स एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, दैट इज़ अबाउट 43, ये सब एग्ज़ाम में नहीं आता। मोस्टली अगर आपको आएंगे तो 20-25 तक ही आपको आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। ठीक है, सो प्रैक्टिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट पहले शेल में 2 डालने, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, उसके बाद जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद जो है 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो जो बचे हुए हैं वो किस में आ जाएंगे? लास्ट ऑर्बिट दैट इज लास्ट शेल, दैट इज एन शेल। ठीक है, yes, so from this I have given you some kind of assignments. Here you can see 282 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है उसके हिसाब से, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में किया था। yes, वैसे यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन योर नोटबुक। ओके, येस, सो 20 का कितना है, कैसे लिखेंगे, 16 का कैसे लिखेंगे, सो दैट यू हैव टू राइट डाउन, एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड ग्रुप। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें से कुछ एलिमेंट है
जो सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो कौन से हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। Yes, I hope all of you have textbook in front of you, and please write down whatever I am saying to you, whatever the main points are there, please write down everything, then only it will very easy for you, ठीक है। So this is all about today. So today we have learned about modern periodic table and electronic configuration of the elements, groups and electronic configuration, yes, and periods and electronic configuration. Okay, so this is all about today. Practice it and write down the electronic configuration. Do your assignment. Thank you.